محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ان ایکشن پراپرٹی ٹیکس ڈیفالٹرز کے خلاف شہر بھر میں کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ مالی سال 2023-24 اپنے اختتام کے قریب پہنچا تو ٹیکس وصولی کرنے والے محکمے بھی حرکت میں آ گئے۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا فیصل آباد میں پراپرٹی ٹیکس ڈیفالٹرز کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن۔ ایکسائز حکام کے مطابق 10,000 سے زائد پراپرٹی ٹیکس نادہندگان کی جائیدادیں رواں ہفتے سیل کر دی گئیں۔ ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نعمان خالد کا کہنا تھا کہ ٹیکس ادائیگی تک پراپرٹیز سیل ہی رہیں گی۔ تمام نادہندگان کو ادائیگیوں کے لیے نوٹسز جاری کر دیے گئے تھے۔ ایکسائز حکام کا کہنا تھا کہ بڑے ڈیفالٹرز کے خلاف مقدمات کا اندراج بھی کروایا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین محمد وقاص کے ہمراہ عمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد۔ محکمہ ایکسائز ہی صرف ایکشن میں نہیں بلکہ فیسکو نے بھی صارفین پر بجلیاں گرانا شروع کر دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کو صارفین کے پاس بجلی بحال رکھنے کے لیے صرف 2 دن باقی، بینک بند ہو یا کھلے 30 جون تک ہر صورت بل جمع کروانا ہوگا، ورنہ بجلی منقطع، نہ قسط نہ کوئی مہلت۔ بل کی عدم ادائیگی پر سرکاری اور پرائیویٹ ڈیفالٹرز کے کنیکشن منقطع کر دیے جائیں گے۔ فیسکو حکام کے مطابق سرکاری ڈیفالٹرز کو بھی 1 دن کا وقت دیا گیا ہے۔ ڈیڈ ڈیفالٹر سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ ٹوبا ٹیکسنگ ریلوے اسٹیشن کی بجلی بل کی عدم ادائیگی پر کاٹ دی گئی۔ 5 ماہ سے بل ادا نہیں کیا گیا۔ 12 لاکھ روپے سے زائد واجب الادا۔ مسافر گرمی میں بغیر پنکھوں کے بحال۔ مرد و خواتین اور بچے بلبلا اٹھے۔ پانی کی بوند بوند کو بھی ترسنے لگے۔ گرمی کی شدت سے ریلوے اسٹیشن کا عملہ بھی نڈال، کام کرنا محال ہو گیا۔ مسافروں نے ریلوے حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ فیسکو نے ریلوے اسٹیشن شورکوٹ کینٹ کا بجلی کنیکشن بھی منقطع کر دیا۔ ریلوے کے ذمہ 23 لاکھ روپے واجب الادا ہے۔ بجلی بند ہونے سے مسافروں اور عملے کو پریشانی کا سامنا۔ ٹوبا ریلوے اسٹیشن کی عرصہ دراز سے تعمیر و مرمت نہ ہو سکی، پلیٹ فارم جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ عرصہ دراز سے تعمیر و مرمت نہ ہو سکی، نفری کی شدید کمی کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی انتظامات بھی بہتر نہ ہو سکے۔ پورے ریلوے اسٹیشن کی سیکیورٹی کے لیے صرف 3 پولیس اہلکار تعینات ہیں۔ پلیٹ فارم بھی جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ مسافروں کا کہنا تھا کہ ریلوے اسٹیشن پر بیٹھنے کے لیے کوئی مناسب انتظام نہیں۔ ریلوے اسٹیشن کا پلیٹ فارم بھی چھوٹا ہے، ٹرین پر سوار ہونا اور اترنا مشکل ہے۔ ریلوے اسٹیشن کی تعمیر و مرمت کروائی جائے اور پلیٹ فارم کو بھی وسیع کیا جائے۔ مسافروں نے اعلیٰ حکام سے ریلوے اسٹیشن پر ناقص انتظامات پر نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبا ٹیکسنگ۔ پی ایچ اے فیصل آباد کی نااہلی 354 سے زائد پارکس اور گرین بیلٹس کی تعزین و آرائش کا کام شدید متاثر۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی فیصل آباد کا مالی خسارہ شہر کے سبزہ کو نگلنے لگا۔ ایک طرف شدید گرمی میں پودوں کو پانی کی ضرورت تو دوسری جانب ڈی جی پی ایچ نے مالی استحکام کے لیے ہارٹیکلچر کے لیے استعمال گاڑیوں کا فیول کم کر دیا۔ پی ایچ اے ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ ہارٹیکلچر ڈائریکٹری کو 600 لیٹر ماہانہ فیول ملے گا، جبکہ پی ایچ اے ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ 600 لیٹر ماہانہ میں شہر بھر میں پودوں کو پانی لگانا مشکل ہے۔ 600 لیٹر ماہانہ پیٹرول سے 100 کلومیٹر سے زائد گرین بیلٹ کو پانی لگانا ممکن نہیں ہوگا۔ پی ایچ اے حکام کا کہنا تھا کہ 600 لیٹر ماہانہ پیٹرول میں پانی کے ساتھ ساتھ گھاس کی کٹائی اور گرین ویسٹ اٹھانا بھی شامل ہے۔ دوسری جانب پی ایچ اے کے پاس گرین بیلٹ کو پانی لگانے کے لیے موجود گاڑیاں بھی خراب ہیں۔ 26 میں سے 13 گاڑیاں فنڈز نہ ہونے کے باعث مرمت کی منتظر ہیں، مگر ڈائریکٹر پبلک ریلیشن نے معاملات پر سب اچھا ہے کی کہانی سنا دی۔ آپ تمام گرین بیلٹس کو جو پانی ہے وہ 2 ٹائم لگے گا، اور اب ابھی بھی جو ہے وہ جو بھی اربن فیصل آباد کے اندر گرین بیلٹس ہیں ان میں ہماری تمام گاڑیاں جو ہیں وہ دن کے اوقات میں بھی پانی لگا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا جو ہے وہ ایوننگ میں یا نائٹ ٹائم میں بھی لگ رہا ہے، اور اس کی باقاعدہ طور پہ ہم جو ہے وہ کیلکولیشن کر کے دیکھتے ہیں جس جگہ پہ ہمیں اگر زیادہ ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ زیادہ پانی لگایا جا رہا ہے، اور ہم انشور کر رہے ہیں کہ کسی جگہ پہ بھی کوئی جو ہے وہ گھاس پانی کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ خرابی کی طرف نہ آ جائے۔ پی ایچ اے حکام کا جلد شہر میں نئے پودے لگائے جانے کا اعلان، تو دوسری جانب شہر بھر کی شاہراہوں اور پارکوں میں لگے پودے موسم کی سختی اور پانی بر وقت نہ ملنے پر سوکھ رہے ہیں۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ وقاص احمد بیگ، سٹی 41 فیصل آباد۔ جنگ کو سرسبز بنانے کا خواب بھی چکنا چور ہونے لگا۔ ٹوبا روڈ پر لگائے گئے لاکھوں روپے مالیت کے قیمتی پودے سوکھ گئے۔ ٹوبا جنگ روڈ پر پام کے درخت لگائے گئے، پتے سرسبز ہوئے تو گھاس بھی اگائی۔ انتظامیہ کی غفلت کے باعث گرمی آتے ہی لاکھوں روپے مالیت کے قیمتی پودے سوکھنا شروع ہو گئے۔ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے پر 90% پام کے درخت گل سڑ گئے۔ گرین بیلٹ پر حد نگاہ سوکھے پودوں کی قطار نظر آنے لگی۔ سبزے کی رہی سہی کسر سیوریج پروجیکٹ کے دوران کھدائی نے نکال دی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ بر وقت پانی نہ لگانے سے پودے خشک ہو رہے ہیں۔ یہ جنگ کی یہ جو شاہراہ ہے نا، یہ شاہراہ مین شاہراہ گنی جاتی ہے، یہاں سے بیر کے اضلاع کو گاڑیاں جاتی ہیں۔ اس میں اتنا خرچہ لگایا
ये इतना, यानी कि उसके बाद हफ्ता में कम से कम कमेटी वाले एक बार तो आते हैं, पानी देकर चले जाते, उसके बाद नहीं पूछते कि यहाँ क्या हुआ क्या नहीं। ये सूख के ये घास जो है ये तब सूख जाती है जब कम से कम इसको 15 दिन पानी न मिले। ग्रीन बेल्ट तबाह होने से टोबा रोड का हुस्न गहना गया। जरूरत इस अमर की है कि शहर को सरसब्ज बनाने के लिए इक़दामात उठाए जाएं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी हड़ताल खत्म कर दी। इस रिपोर्ट में देखिए। साहिवाल वाक़या के खिलाफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन गुज़श्ता 8 रोज से टीचिंग और नॉन टीचिंग अस्पतालों की ओपीडी में हड़ताल कर रहे थे, जिसका खमियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा था। ताहम लाहौर हाई कोर्ट ने यंग डॉक्टर्स को हड़ताल खत्म करने की तजवीज़ दी तो यंग डॉक्टर्स ओपीडी में वापस आ गए और मरीजों को चेक करना शुरू कर दिया, जिस पर मरीजों ने सुख का सांस लेते हुए आइंदा हड़ताल न करने की अपील कर दी। भाजी डॉक्टर का काम है हड़ताल नहीं करनी, मरीज बड़े दलील होंगे देखो एडी दूर आते तेल 2-3 हज़ार का ला के आते, चंगी गल नहीं, माड़े बंदे जी। डॉक्टरों को मैसेज ये देंगे ये मरीजों के लिए हड़ताल नहीं किया करें जी, बहुत प्रॉब्लम बनती है जी इधर। ओपीडी में गुज़श्ता 8 रोज से ख्वार होते मरीजों के चेहरे डॉक्टरों को वापस देकर खिल उठे। कहते हैं हजारों रुपए किराया खर्च होता है, जब यहाँ पहुँचते हैं तो हड़ताल होती है। डॉक्टरों को कोई मसला हो तो वो बजाय मरीजों को परेशान करने के हुकूमत के साथ बात किया करें। यार असीं हुण इन्हां डॉक्टरां नूं की कह सकदे, मरीज बंदे आ वेखो मेरे ते फैर लगा भाई, ठीक है 2 हफ्ते हो गए जलील होने, ओपीडी बंद है, रोजाना आने पर्ची बना के चले जाने। हुण भी ऐ डॉक्टर कहते जी हड़ताल आ, पता नहीं कातों हड़ताल, मरीजों का कसूर आ। अगर इन्हां कोई मसला मसाइल है अपने अफसरां नाल गल करन, सानू गरीबां ते ना सजा देन, असीं किहड़े पासे जाइए। डॉक्टर से गुजारिश है कि हड़ताल ना किया करें, वो मरीज परेशान होते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक फैसलाबाद में तकरीबन 15,000 मरीज यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के हड़ताल की वजह से इलाज मुआवजे से महरूम रहे। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादर हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। यंग डॉक्टर्स ने अदालत के कहने पर हड़ताल खत्म की तो महकमा सेहत ने एक बार फिर वाईडीए के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी। गुलाम मोहम्मदाबाद टीचिंग अस्पताल के डॉक्टर सुबान बाबर को एहतजाज के जुर्म में मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट टीचिंग अस्पताल फैसलाबाद गुलाम मोहम्मदाबाद ने यंग डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमे के लिए पुलिस को दरख्वास्त दी। 14 नामजद और 70 से 80 नामालूम डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी गई थी। यंग डॉक्टर्स और महकमा सेहत का तनाज़ा अपनी जगह, सरकारी हस्पतालों में सहूलियात की मुकम्मल फराहमी में भी महकमा सेहत नाकाम दिखाई देता है। इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एसी बंद होने से दिल के मरीजों का दम घुटने लगा। डीएमएस इमरजेंसी ने एयर कंडीशन फौरी ठीक कराने की अपील कर दी। एफआईसी के एमएस डॉक्टर राना नदीम कहते हैं कि नए एयर यूनिट लगवाए हैं, जिससे लोड का मसला हल हो रहा है। जल्द नई वायरिंग मुकम्मल हो जाएगी और मसला हल हो जाएगा। एमरजेंसी में भी वाटर कूल यूनिट्स इंस्टॉल किए थे, अब उसके साथ साथ अजाफी जो है एयर कूल यूनिट जो हैं वो भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये 1-2 दिन के अंदर जो है सारे के सारे जो है इश्यूज इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगे, ताकि जो जितने यूनिट्स लगे हुए हैं वहाँ पे एयर कंडीशन के वायर पे जो है एक्स्ट्रा लोड ना पड़े, इसलिए साथ में जो है अजाफी जो वायर जो है वो डाली जा रही है। झंग के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में नौज़ायदा बच्चों के वार्ड में सहूलियात का फुकदान है। बेबी वार्मर्स की कमी के बाइस लवाहिकीन को मुश्किलात, बच्चों में इन्फेक्शन फैलने का खतरा। एक ही वार्मर में 2 से ज्यादा बच्चों का इलाज किया जाने लगा। अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर 80 से ज्यादा बच्चे नर्सरी में इलाज के लिए लाए जाते हैं, जबकि बेबी वार्मर सिर्फ 30 हैं। MSDHQ डॉक्टर सदफ नकवी कहती हैं कि मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। नर्सरी में बहुत ज़्यादा रश है। नर्सरी में डेली हमारे पास 60 to 80 बच्चे होते हैं। इससे पहले हमारे वार्मर 16-17 थे, अब हमारे वार्मर्स हमने तकरीबन डबल कर दिए। मतलब इंक्यूबेटर भी डबल हो गए हैं और उसमें वहाँ वेंटिलेटर भी रख दिए गए। सहूलियात में पहले से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया और नर्सरी को भी एक्सटेंड कर दिया गया। नेक्स्ट तकरीबन 1 माह के अंदर हम ये जो मौजूदा नर्सरी है इसको भी डबल कर देंगे। उधर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में 2 हफ्तों से कंट्रास्ट इंजेक्शन नायाब होने की वजह से गुर्दों के सीटी स्कैन के लिए आने वाले गरीब मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। जो है मोल से आएंगे, मेरे पास बिजली का कोई माहौल नहीं। वो गरीब बंदे बहुत है, मियाँ को फाल है, बच्चा 14 साल का मजदूर है, उसके गुर्दों का मसला है। मैं यहाँ आ रही हूँ, यहाँ से मुझे टीका नहीं मिल रहा, बाहर से मंगवा रहे, बाहर से 10,000 रुपए के दे दे, इधर गुंजाइश नहीं। हम गरीब बंदे कहाँ से ले आए, हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है। कोई मेहरबानी करे हमारे। मरीजों का वजीर आला से अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। कुड़ियावाला का स्लॉटर हाउस गंदगी और बीमारियों की अमाज का बन गया। मुसबा खाने में जगह जगह जानवरों की हड्डियां और जिस्मानी आज़ा मौजूद। कुड़ियावाला में स्लॉटर हाउस बीमारियों का गढ़ बन गया। अरसा दराज से गैर फाल स्लॉटर हाउस में मुर्दा जानवरों के जिस्मानी आज़ा मौजूद। मुर्दा जानवरों की फुटेज सिटी 41 को मौसूल।
इदारों की कारकर्दगी सवालिया निशान बन गई। मकीनों का कहना था कि हमारे इलाके में कौन से जानवर का गोश्त फरोख्त हो रहा है कोई इल्म नहीं, अगर स्लाटर हाउस बंद है तो जानवर कहाँ ज़िबह किए जा रहे हैं। मुतल्लिका डॉक्टर ने किसाबों को घर में गोश्त की तस्दीक के लिए मोहर उनके घर तक पहुँचाई हुई है। मंथली वसूल की जाती है और मुर्दा जानवरों को ज़िबह करने की इजाजत दे रखी है। कोई जानवर नहीं यहाँ ज़िबा होता, किसी चीज़ का यहाँ पे कुछ इंतजाम नहीं है। पता नहीं है कहाँ से खुड़िया वाले में गोश्त खिला रहे हैं, हमें तो बिल्कुल नहीं इनका मालूम ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ। मुर्दार गोश्त खिलाई जा रहे हैं हमें, तो लिहाजा हमारी इल्तिजा है कि इस पे कमेटी तवज्जो करे। खुड़ेवाला के मकीनों ने आला हुक्काम से मामले पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अली रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद और चिन्योट में मुतअद्दिद सड़कें टूट फूट का शिकार, हादसात में इजाफा, आमदोरफ्त महाल हो गए। जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के मेन सड़क टूट फूट का शिकार, तालिबात को गुजरने में मुश्किलात, कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर होने लगी। धूल मट्टी उड़ने से सांस और आंखों के अमराज में इजाफा हो गया। 2 माह पहले इन्होंने इफ्तिताह किया जी, ये सड़क बनने लगी है। यहाँ के साबका MPA MNA को खुद तकरीब हुई, पैसे भी खर्च किए उन्होंने, ये वही के वही है। चिन्योट रजुआ रोड खस्ताहाली का शिकार, बाईपास चौक की हालत जार खराब होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, अहले इलाका परेशान। कहते हैं टूटी फूटी सड़क पर सफर करना मुश्किल हो चुका, गाड़ियां खराब होना मामूल बन चुका है। अरसा दराज से रोड की यही सूरत हाल है। तकरीबन 2, 3, 4 साल से इसी तरह बिल्कुल रोड पड़ा हुआ है। ये रजुआ चौक से बाईपास तक जो है ना, ये टूटा फूटा हुआ है। हम MPA साहब से और MNA साहब से मुतालबा करते हैं और इंतजामिया से कि इस तरफ थोड़ी तवज्जो करें। हम इस लोग जो हमारे बुजुर्ग हैं, औरतें बुजुर्ग हैं, रिक्शे वाले, वो इस रोड से बहुत ज्यादा परेशान हैं जी। 18 हजारी में अहम शाहराहों की इतराफ, तजावुजात की भरमार, रेहड़ी बानों और ठेले वालों ने सड़क पर डेरे जमा लिए। मुहर्रमुल हराम नजदीक, लेकिन रिवायती रूट्स भी क्लियर न कराए जा सके। शहरियों का आला हुकाम से फौरी तजावुजात हटाने का मुतालबा, बोले DC जंग तजावुजात का खात्मा यकीनी बनाए। चिन्योट शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर आर्जी ट्रांसफार्मर ट्रालियां रखकर फेस्को एहलकार भूल ही गए। बिजली तो बहाल हो गई, लेकिन सड़कें बंद होना शुरू हो गई। मोहल्ला काजिया जंग रोड अंदरून शहर में खड़ी ट्रांसफार्मर ट्रालियां शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। ये 2 महीने से यहाँ पर ट्राली पड़ी है, यहाँ पे कब हमने अपना वापडा में जाके दरखास्तें दी हैं, लेकिन हमारी दरखास्त पे कोई अमल दरामद नहीं होता। और यहाँ पे ये ट्राली रख के भूल जाते हैं। यहाँ पे कब कौन सा कोई हमारे मोहल्ले में कोई मरीज हो, यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आ सकती, और दोपहर टाइम को ट्रैफिक जाम यहाँ पे होती है। यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाती है। यहाँ पे मुतअद्दिद ट्राली के अंदर कुछ लोग भी लगे हैं, पर लेकिन यहाँ पे कोई इंतजामिया की जानब से हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही। शहरियों ने मुख्तलिफ मकामात पर खड़ी ट्रांसफार्मर ट्रालियां हटाने का मुतालबा कर दिया। जंग में टिकटॉकर्स ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदाद लेने आए खवातीन को अपनी मशहूरी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर। जंग में इमदादी रकम के हसूल के लिए आने वाली खवातीन की तजलील की जाने लगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मुस्तहिक खवातीन के लिए बनाया गया सेंटर इस्लामिया हाई स्कूल में रिटेलर की जानिब से रकम सामने रखकर खवातीन की वीडियो बनाई गई, फिर टिकटॉक पर वायरल कर दी गई। वीडियो सामने आने पर समाजी हलकों में इजहार तशवीश। बेनजीर इनकम सपोर्ट सेंटर्स में टिकटॉकर्स के दाखिले पर पाबंदी और रिटेलर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। समाजी रहनुमाओं का मजीद कहना था कि इमदादी रकम लेने आई खवातीन की तजलील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंतजामिया नोटिस ले। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। चेयरमैन ड्रग कोर्ट फैसलाबाद ने गैर रजिस्टर्ड अद्वियात फरोख्त करने के जुर्म में गिरफ्तार शख्स को 4 करोड़ रुपए जुर्माना और 5 साल कैद की सजा सुना दी। गैर रजिस्टर्ड अद्वियात फरोख्त करने के जुर्म में मुलजिम अब्दुल्ला को 4 करोड़ जुर्माना और 5 साल कैद की सजा। चेयरमैन ड्रग कोर्ट से खालिद जावेद बुखारी ने यह अहम फैसला सुनाया। मानसून की आमद चारों अजला में इंतजामिया अलर्ट हो गई। मानसून से कबल महकमा वासा मुतहरिक फैसलाबाद के 19 नशेबी इलाकों की निशानदही कर ली। समुद्री रोड, LCM स्कूल, 7 बेला पीपल्स कॉलोनी, अल मासूम टाउन, मंडी मोड़, समुद्री रोड, टाटा बाजार, डचकोट रोड, जनरल अस्पताल समनाबाद, निशाताबाद पुल, जुमरा रोड, जनाब चौक, GTS चौक भी वाटर पाउंडिंग वाले इलाकों में शामिल। MD वासा आमिर अजीज का कहना था कि नशेबी इलाकों की तफसीलात कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को भिजवा दी हैं। कहीं नई लाइन तो कहीं मिनी डिस्पोजल स्टेशन बनाए गए हैं। मानसून से कबल मसाइल के हल के लिए इकदाम कर रहे हैं।
टोबा टैक्सिंग की इंतजामिया मानसून की बारिशों से निमटने के लिए सरगर्म, बर वक्त निकासी आब के लिए प्लान तश्कील। शहर में 8 से जायद मकामात पर पानी जमा होने से मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। नशेबी इलाकों में शहबाज चौक, अंडरपास, जंग रोड, शोरकोट रोड, वरियामवाला रोड, जिला कचहरी, गौशाला और पुरानी ईदगाह रोड शामिल हैं। इंतजामिया के पास बर वक्त पानी की निकासी के लिए 5 डी वाटरिंग सेट मौजूद हैं। चनौड़ में म्यूनिसिपल कमेटी ने मानसून से निपटने के लिए पेशगी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। मानसून में चारों डिस्पोजल स्टेशन 24 घंटे फाल होंगे। गढ़ चौक, कमेटी चौक, फैसलाबाद रोड, जुमरा रोड नशेबी इलाकों में शामिल। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी मोहम्मद तलहा सईद का कहना था कि अमला नशेबी जगहों पर सीवरेज लाइन्स क्लियर करने के लिए मौजूद होगा। मानसून से कबल ड्रेन लाइन्स की डीस्लटिंग कर दी गई है। रवा हफ्ते मानसून की मुमकिना बारिशें, म्यूनिसिपल कमेटी जंग ने 19 नशेबी इलाकों की निशानदही कर ली। बस्ती जलालाबाद, बस्ती दीवानवाली, मर्जीपुरा और शीरी चौक, एमनाबाद, मोनी चौक, बस्ती शहनी वाली, मोहल्ला सिविल लाइन, यूसुफ शाह रोड, SSP रोड, टोबा रोड, बस्ती दीवानवाली, नवाज चौक, UBL चौक, सर्किट हाउस, MPA रोड, गुलशन कॉलोनी, बस्ती अली अराइया, कलमा चौक, बहारी कॉलोनी शामिल है। म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से डी वाटरिंग सेट्स, सक्कर, जेटर मशीनों को चालू कर लिया गया। दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी। चनौड़ के मकाम से 20,000 क्यूसिक से जायद का रैला तरीमों की जानिब रवा दवा। हाई लेवल फ्लड की सूरत में जिला के 132 दही इलाके ज़ेराब आने का खदशा। हेड मराला के मकाम पर पानी की आमद 58,000 क्यूसिक, अखराज 27,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड कादराबाद पानी की आमद 33,000 क्यूसिक, अखराज 14,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। मराला से चनौड़ तक आबी रैला पहुँचने में 3 से 4 दिन लगते हैं।